जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना, तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, तेरा लख लख शुक्राना। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਥਾਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 100% ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। और शुकराना मेरे गुरु पिता, थोड़ा लख लख शुकराना, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, मैं अपने दोनों परिवारों वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੇਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ 2 ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਾफ़ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਬਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਪਿਓਰ ਵਾਈਟ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਬਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾ ਤਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਧਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਲ ਨਾਈਟ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत किरपा गुरु जी की, हर प्रॉब्लम तो ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਉਲਝਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਚੜਾਇਆ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 7 ਵਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 100% ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਕਿਪ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ YouTube 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਖਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਖਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨਸ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ।
गुरु जी की किरपा इन्नी कि गुरु जी इन्नी वड्डी बीमारी छोटे जे कट रहे हैं। गुरु जी का लख लख शुकराना, लख लख शुकराना, लख लख शुकराना। गुरु जी ने मेरी बाह पकड़ ली सही टाइम ते आके। गुरु जी का लख लख शुकराना। गुरु जी का बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना, बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ही सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत अमृत वर्षा हुई है। संगत जी, गुरु जी ने कई बार मुझे बोला था कि इस अमृत वर्षा जब बारिश होगी सावन में, सावन ख़त्म होने से पहले भीग लेना उस बारिश में। लेकिन संगत जी, मैं उतना नहीं भीग पा रही थी। थोड़ी बहुत छिट्टियाँ भले मेरे पर पड़ जा रही थी, उससे ज़्यादा नहीं भीग पा रही थी, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ और यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है अगर थोड़ा कोशिश भी करो ये सब भीगने की, ऐसा कुछ करने की। लेकिन संगत जी, आज गुरु जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि एक तो आज इतनी तेज़ बारिश हुई, और बारिश की जो संगत जी बारिश की जो पोजीशन थी ना, वो बिल्कुल घर के अंदर तक थी संगत जी। मतलब मुझे घर के बाहर, घर के छत पे, पूरी बालकनी पे भी नहीं जाना पड़ा संगत जी। मैं बस डोर खोल के खड़ी हो गई संगत जी बालकनी की, और पूरी बारिश गुरु जी ने मेरे ऊपर कर दी संगत जी। आज मतलब आज सावन का आखिरी मंगलवार है और कुछ दिनों में सावन ख़त्म हो जाएगा, और उससे पहले गुरुजी ने अपनी अमृत वर्षा से मेरे सारे कष्टों को, नेगेटिविटी को काट दिया, अपने जल प्रसाद से, अपनी अमृत वर्षा से, अपनी जल वर्षा से, और मुझे भिगा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, आज एक बटरफ्लाई मेरे फ्लोर के गेट पे चिपकी हुई थी संगत जी। मुझे लगा शायद वो मतलब उसमें प्राण नहीं है, फिर मैंने देखा नहीं, उसमें प्राण है। वो ऐसे वहाँ पे बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है, तो मैं समझ गई कोई कष्ट है जो गुरुजी मेरा लेने आए हैं बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी, वो बटरफ्लाई ऐसे चिपकी रही, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। शाम में संगत जी अचानक से वो मैंने डोर देखा, तो मैंने कहा ये बटरफ्लाई तो यहाँ नहीं है, तो मुझे लगा शायद संगत जी वो उड़ गई। फिर मैंने बालकनी पे जाकर देखा संगत जी, तो वो बेचारी तड़प रही थी संगत जी। मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट बटरफ्लाई ने अपने ऊपर मेरा लिया है, और जो कष्ट आज मुझ पे आने वाला था या मेरे हस्बैंड अंकल पे किसी पे भी आने वाला था, आज उस बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी काट रहे हैं। और संगत जी, उसके बाद वो मुझे नहीं दिखी, पता नहीं शायद मॉर्निंग में कहीं मिले, मुझे नहीं पता। अभी तो संगत जी रात हो गई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्टों को इन जीवों के रूप में काटने का शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई के रूप में मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी रक्षा करने का, इतनी केयर करने का, इतना प्यार देने का शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत हो रहा था, मैं रो रही थी। पता नहीं क्यों आज मुझे बात बात पे रोना आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी, मुझसे बहुत सत्संग नहीं सुने जाते, मतलब गुरुजी मैं तो थोड़ा भी नहीं अपने लिए जी पा रही हूँ। दिन के इतने सारे सत्संग गुरुजी, खाना बनाती हूँ तो हेडेक होती, सत्संग सुनना है, हस्बैंड अंकल, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लगता है मैं टाइम पे खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत एक होता है ना, ये खतरा है, ये सुन तो मैं डर जाती हूँ। तो आज मैं बहुत रोई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद आज मैं इतना बेवजह इतना रो रही हूँ ना, सुबह भी रोई, फिर दोपहर में फिर चुप हो गई, फिर शाम में रुलाई आ गई। मुझे समझ में आ गया कि ये तो मैं अक्सर सुनती हूँ, पर मुझे किसी किसी दिन इतना रोना क्यों आता है। तो मैं समझ गई गुरुजी किसी रूप में मेरा रोना लिखा होगा, तो गुरुजी मुझे इस रूप में मेरा वो कष्ट कटवा रहे हैं रुला के, ताकि मुझे किसी और चीज़ों पे रोना ना पड़ जाए। इन छोटी-छोटी चीज़ों पे रुलवा के गुरुजी मेरा बहुत बड़ा कष्ट इस छोटे तरीके से कटवा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ आपका महाराज उतना ही कम है प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी गुरुजी ने ना मैंने ग्लास में पानी रखा था और पानी पीने के लिए रखा था संगत जी। वो ग्लास फिर एक गलती से मैंने बेड पे रख दिया था और जो बेड से मैंने वो ग्लास हटाया संगत जी, जो नीचे से जो थोड़ा सा पानी लगा होता है ना ग्लास में, तो उससे ना बेड पे संगत जी उस पानी से ओम बन गया। तो गुरुजी हर पल अपनी ब्लेसिंग अपने होने का एहसास दिलाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे काफ़ी दिन से स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, एलर्जी की। तो ना 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे लेफ्ट हैंड में ना स्किन एलर्जी फिर बढ़ गई और उस पे ओम बन गया। तो फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि गुरुजी मेरी उस स्किन एलर्जी के कष्ट को काट रहे हैं या कोई और बड़ा कष्ट उस एलर्जी के रूप में मेरे ऊपर आने वाला था। सत्संग में आंटी जी बता रही थी, तो वो गुरुजी ने अपनी छाप दे करके, अपना ओम दर्शन दे करके उस कष्ट को काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुजी ने। आज संगत जी बहुत सारे कष्टों को भी काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के पाँव में, कमर में हल्की फुल्की दर्द हो रही है और गुरुजी मुझे सत्संग लगातार सुनवा रहे हैं, तकलीफ़ों के, पेन के, चोट के, एक्सीडेंट के, कैंसर के। तो मुझे पता है गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं प्यारे गुरुजी आपका उतना ही कम है। आप बस ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना कि एक छोटी सी बच्ची, पुरानी संगत का सत्संग था, छोटी सी बच्ची थी, जब गुरुजी अपने फिजिकल रूप में थे तो उसने एक लेटर गुरुजी को लिखा था। उस लेटर में उस छोटी सी बच्ची ने आई लव यू गुरुजी लिखा था। तो गुरुजी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो संगत जी मैंने सुना और उसमें हार्ट उसने बनाया था। तो संगत जी मैंने जब सुना, जब से ये सत्संग सुना तब से मैं समझ गई कि गुरुजी संगत जी नाराज़ क्या हुए। संगत जी गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी महादेव हैं, गुरुजी बहुत बड़ी हस्ती हैं संगत जी। और बड़ी हस्ती की एक मर्यादा होती है वो हमारे पिता संगत जी। लेकिन ये मैं नहीं कह रही, मैंने पुरानी संगत का ही सुना। तो हमें उस मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए। अपने गुरु जी को प्यार करिए, सम्मान दीजिए, पर एक मर्यादा में रह के, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है संगत जी, वो महाशिव हैं। तो सत्संग से मुझे मतलब काफ़ी एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, अब मैं भी मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, असल में गुरु जी का क्या रख रखाव था, ये हमें पुरानी संगत से सुनने को मिलता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ना आजकल मुझे ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत पिक्चर्स दिखा रहे हैं गुरुजी, जिसमें गुरुजी बड़े मंदिर की नींव रख रहे हैं और एक संगत के हाथ में कलावा बांध रहे हैं और बहुत बड़े मंदिर के बनने का काम चल रहा है। ये चीज़ गुरुजी ने मुझे इंस्टा पे भी बहुत सुनवाया और गुरुजी ने मुझे ये चीज़ यूट्यूब पे भी सुनवाया। और गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे मैं बहुत जल्दी ऐसी घर ब्लेस करने वाला हूँ, इसीलिए गुरुजी मुझे ये सब दिखा रहे हैं, घर की नींव। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन में चल रहे सवालों का जवाब देने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अभी ना मैं फ़ोन से सत्संग शेयर कर रही हूँ। फ़ोन से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक वाइट लाइट से निकल रही है दीवार पे। पता नहीं ये मेरा भ्रम है या संगत जी क्या है। तो जो भी है गुरुजी महाराज, गुरुजी लाइफ में होते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग देने का, अपने आसपास होने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी मेरा एक और शुक्राना ये है कि काफ़ी साल पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी और जब मैं 2020 की बात बताऊँ, मैं साईं बाबा की भक्त थी। तो साईं बाबा ने मुझे, जब मैं बहुत लाइफ में टूटी हुई थी, परेशान थी, सब कुछ लगा था सब ख़त्म हो रहा है, तो मुझे साईं बाबा ने उस वक्त संगत जी दर्शन दिए थे स्वप्न में। और मुझे संगत जी मुझे दर्शन दिए थे स्वप्न में साईं बाबा ने। और मुझे एक पर्ची देने की कोशिश की जिस कागज़ में जो कुछ लिखा था, और ताकि उसमें मेरी मुसीबत से निकलने का कोई हल था संगत जी। और उसके बाद एक ग्रीन कलर का सांप आया, उसने झपट्टा मारा, वो पर्ची उड़ गई कहीं, मुझे नहीं मिली। और बाबा अंतर्ध्यान हो गए, मेरी आँख खुल गई संगत जी। उसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। पर आज 2025, आज जब मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ, 2023 में संगत जी गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, आज मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से जवाब दिया कि उस पर्ची में लिखा था कुछ और नहीं लिखा था, उस पर्ची में लिखा था बड़े मंदिर। शायद साईं बाबा मुझे गुरुजी से जोड़ने का रास्ता बता रहे थे। वो मेरी दुख दर्द तकलीफ़ को देख कर के
समझ गए थे कि अब मेरी बच्ची को गुरुजी की ज़रूरत है, बड़े मंदिर की ज़रूरत है। अब मेरी बच्ची टूट रही है, हार रही है, अब मुझे इसको एक महाशिव के एक गुरु से छोड़कर संपूर्ण गुरु के हाथों में इसे सौंपना है। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से उतने पुराने सपने का जवाब दिया जिस नेगेटिविटी ने वो पर्ची गायब कर दी थी, पर मेरे महाशिव ने फिर भी मुझे अपने से जोड़ लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नकारात्मकता कितनी बड़ी क्यों ना हो संगत जी, उसे अच्छाई के हाथों गुरुजी के हाथों समाप्त होना ही पड़ता है, हारना ही पड़ता है। संगत जी, भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे दीवार पे त्रिशूल के और ओम के दर्शन हो रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, को शुक्राना पे मैं बैठी थी, मैं फ़ोन चार्ज पे लगा रही थी, तो मैंने देखा ज़मीन पे मुझे ईवेल बना हुआ है, तो मतलब मुझे अजीब सा लगा। और मेरे बगल में जल प्रसाद रखा था ग्लास में, संगत जी मैं लेके आई थी, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी करी कि मेरा मंत्र जाप करके जो भी तुझे एक पिक्चर दिखाई दे रही है ज़मीन पे, इस पे छिड़क दे। तो संगत जी मैंने वही किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना गाइड करने का, ये हर पल साथ देने का, इतनी प्रोटेक्शन देने का शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना प्रभु, अपनी अपनी छत्र छाया में रखने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से 3 दिन किचन से सावधान रहने को बोला है। आज का दिन तो निकल गया संगत जी, अब बचे कल या परसों के दिन मुझे किचन से सावधान। गुरुजी कहते कोई खतरा है तो चिंता ना कर, तुझे कुछ होने तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा, बस तू सावधान रहना, खुद से कोई बेवकूफ़ी मत करना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना ध्यान रखने का, इतना सावधान करने का, इतनी केयर करने का, इतना ख्याल रखने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहे थे कि तुझे खुशी ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे किसी फंक्शन में जाने के लिए भेज रहा हूँ, तुम हस्बैंड वाइफ की एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने अभी एक अपना फ्लैट की उन्हें ओपनिंग करनी थी, और तो उनका फ़ोन आया था कि आप लोग ओपनिंग में ज़रूर आइएगा। संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज जी ने मुझे कहीं जाने के लिए मना किया हुआ है कि तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, किसी की भी रिश्तेदारी में नहीं जाना है, मेरी सब चीज़ें जहाँ कहीं जाना सब बंद है। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे भेजा, और वहाँ पे गए संगत जी, हम लोग, मैं, मेरा बेटा और हम तीनों बंदे वहाँ पे गए, और उन्होंने संगत जी हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम भी करा, अच्छे से बातचीत की, बहुत ही अच्छे से। संगत जी, जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे ठाकुर जी का कीर्तन हो रहा था, सत्यनारायण की कथा हुई होगी, और ठाकुर जी का कीर्तन चला था। इतनी सुंदर ठाकुर जी विराट वहाँ पे विद्यमान बैठे हुए थे। बहुत 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 शुक्राना, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर घर गुरु महाराज जी ने उनको ब्लेस किया है। संगत जी में 2 ही भाई बहन हैं, एक बेटी का उनका एक साल के अंदर ही पहले बेटा जो था, बेटे का जॉब लगी, वो इंटेलिजेंट ब्यूरो में उस ऑफिसर हो गया है, और बेटी उनकी ब्लॉक में वीडियो हो गई है। संगत जी, गुरु महाराज जी की उन पर बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। गुरु महाराज जी ने उनके घर में सुख शांति, और अभी 1.5 करोड़ का एक फ्लैट खरीदा है संगत जी बेटे ने। इसके लिए उनकी बहुत खुशियाँ उनके घर में बनी रहे। गुरु महाराज जी जैसे उनके भाग्य सुधारे, सबके सुधारना गुरु जी। जिसके बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चों को भी नौकरी देना गुरु माँ जी, उनको भी अधिकारी बनाना। मेरे बच्चों पर भी कृपा करना गुरु जी, कृपा करो गुरु जी मेरे बच्चों पर भी, उनको भी तैयारी कर रहे हैं, उन पर भी उनके सर पे हाथ रखिए। और संसार में जो भी बच्चे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सबके सर पे हाथ रखिए गुरु महाराज जी। जैसे घर में खुशियाँ उनके भरिए, सबके भरिए मेरे मालिक, मेरे दाता। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ।
संगत जी वहाँ पे प्रसाद वगैरह सब लिया और जैसे ही हम लोग लंच करने के लिए बोला कि चलो सभी लेडीज ये लंच कर लेती हैं, क्योंकि हम लोगों में लेडीज और जेंट्स थोड़ा अलग अलग करते हैं, खाना पीने का थोड़ा अलग अलग है। तो संगत जी पहले जेंट्सों ने किया और फिर हमारे यहाँ लेडीज ये सभी इकट्ठी होके गई। तो संगत जी लिफ्ट से ही हम लोगों को जाना था नीचे हम लिफ्ट से ही चले गए और अपना लंच करके वहाँ से जैसे हम लोग आने लगे तो सत्संग जी उसमें ऐसे 7-8 लेडीज उसमें आ गई। तो संगत जी पहले तो मैं बैठ अंदर घुसी, फिर निकली, फिर अंदर घुसी, जाऊँ ना जाऊँ क्या है, कभी ज़्यादा हो जाए क्या है, लेकिन फिर मैं उसमें लिफ्ट में आ गई। संगत जी जैसे ही हम लोग से जहाँ पे हमें 3rd फ्लोर पे जाना था संगत जी, वहाँ पे लिफ्ट रुक तो गई लेकिन खुले ही ना। बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गई संगत जी वहीं पर ही, और वो लिफ्ट ही बंद हो गई, ना वो ऊपर जाए और ना नीचे जाए, ना वो खुले, और सब चीज़ें बंद। जो भी अंदर बैठे हुए सभी, किसी के तबीयत खराब होने लगे, बच्चे रोने लगे, और कभी लाइट चली जाए, कभी परेशान हो जाए। जो बच्चे जो बाहर से हमें देख रहे हैं उनकी बात हमें समझ में ना आए, और जो हम कह रहे हैं उनकी समझ में ना आए क्या है। तो फिर संगत जी फिर एक आंटी के पास उनमें फ़ोन था, उन्होंने फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अभी रुको, कुछ मत करो, और हम अभी नीचे से देख रहे हैं। तो संगत जी उन्होंने जाके फिर थोड़ी बहुत देर के बाद में उसमें से देखा, नीचे से कोई ठीक उन्होंने की लिफ्ट को। जब हम लोग बाहर निकले हम तो संगत जी मैं जब सब बच्चे सब रोने लगे, देखने लगे, मुझे सब परेशान हो गए। मैंने तो गुरु महाराज जी से अरदास की, हे परमपिता परमेश्वर कुछ कीजिए महाराज, इससे बाहर निकालिए हमें, हे मालिक इन बच्चों की रक्षा कीजिए, हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, ऐसे तो कैसे चलेगा, यूँ बंद तो नहीं रह सकते, गुरु महाराज जी प्लीज़ सहायता कीजिए। थोड़ी देर के बाद ही वो बंदे आते हैं और कहते हैं कि चलो हम अभी नीचे जाके उनको बुला के दिखाते हैं कि क्या समस्या हो गई है। संगत जी 5 मिनट भी नहीं लगी और हमें लिफ्ट खुल गई, और पहले नीचे गई फिर ऊपर आई, और संगत जी फिर हम लोग उसमें से निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि प्रणाम। आप कहाँ नहीं हो, आप हर जगह विद्यमान हो, अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। संगत जी धन्यवाद गुरु महाराज जी। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बहुत दिनों के बाद हम लोग किसी प्रोग्राम में गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो हम हस्बैंड वाइफ में बनते नहीं, बातचीत नहीं करते हैं, जो भी बस बच्चे ही आपस में बच्चों के साथ ही होता है, क्योंकि हम लोगों की क्या है कि बस लड़ाई झगड़ी से होने से है कि शांत ही रहिए। वो अपनी फैमिली की सुनते हैं, अपनी फैमिली वालों पर डिपेंड। हमने तो छोड़ा कि ठीक है आप अपनी फैमिली को देखिए, अपनी फैमिली को संभालिए, हमें कोई प्रॉब्लम, हम किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपना ठीक है जो जैसा आपको करना है आप करिए। तो संगत जी हम उतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लड़ाई झगड़ों से अच्छा है कि अपना ऐसे ही ठीक है, शांत ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। गुरु महाराज जी कहते हैं चुप रहो, शांत रहो, मैं अपना आप देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसलिए कल गुरु महाराज जी ने हमें ठाकुर जी के सत्संग में भी बुलाया और दावत भी खिलाई, इसलिए गुरु महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु महाराज जी मेरे बेटे का क्या था कि उसको क्या नाम परेड के लिए ना लाल किला जैसे 15 अगस्त आ रहा है, तो परेड कराने के लिए वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है इनकी एनसीसी वाले बच्चों की। तो संगत जी इस बेटे का रहने की व्यवस्था करनी थी कि दिल्ली में कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, 15 दिन निकालने हैं।
क्योंकि सुबह 5 बजे उनको जाना होता है और इधर से मेट्रो भी नहीं चलती है। तो संगत जी ये जो बोला कि ठीक है ओला से चला जाएंगे, आप एक लड़के से बात की तो लड़का बोला कि हाँ ठीक है, तू और मैं दोनों जाएंगे। लेकिन संगत जी उसका क्या हुआ, उनको तो वो दूसरी टीम में था, ये दूसरी टीम में थे, इन्हें पूरे 15 दिन जाना था, उन बच्चों को सिर्फ 3 ही दिन जाना था, तो वो भी कैंसिल हो गया संगत जी। जिसके साथ प्लानिंग बनाई थी किसके साथ चला जाऊंगा तो वो भी कट गया। गुरु महाराज जी ने वो भी चलो वहाँ से भी हटाया। फिर एक उसका दोस्त था, दूसरा उसका भी इसके साथ में ऐसा ही हुआ, वो भी हाथ निकल गया कि मुझे भी 3 दिन ही जाना है। तो संगत जी फिर अब इसने सोचा कि क्या करता हूँ, मम्मी मामा इसके मामा रहते हैं कि वहाँ पे रह लूँ। फिर इन्होंने सोचा कि पॉसिबल ही नहीं होगा कैसे, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं बेटा ठीक है अपने घर से ही कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उनके पास भी इतना अभी शिफ्ट हुए, थोड़ा टाइम ही लगेगा उन्हें भी सेटल होने में। तो संगत जी फिर किसी अपने दोस्त के फ्लैट पे रहना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो फ्लैट भी नहीं था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उसने वो भी कैंसिल कर दिया। तो संगत जी घर से ही जा रहा था। तो 2-3 दिन तक तो बाइक पे गया, ओला से, बाइक वाले जो आते हैं तो बाइक से चला गया। आज संगत जी वो 250 रुपये लेते हैं, आज संगत जी वो 550 रुपये में ओला गई, बाइक वाला कोई आया ही नहीं। इतना परेशान हो गया है। फाइनेंशियल समस्या तो हमारी इतनी चल रही है, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज जी कौन से कष्ट काट रहे हैं कौन से नहीं हैं, क्या हो रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो फाइनेंशियल समस्या इतनी हो रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं क्या करना है, गुरु जी मुझे क्या करना है, आगे कैसे पढ़ूं, बच्चा भी कहीं लग जाता तो रास्ता बन जाता। गुरु जी मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है, मालिक कैसे कैसे गुजारा होगा। मेरे हस्बैंड तो अपने घर वालों के कहने में चलते हैं, वो तो पैसे देने में आनाकानी करते हैं, वैसे भी उनका भी काम कम ही चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चे हैं, लेबर के हैं, किराया देना है। 1 लाख रुपया 26 एक दुकान की 26,000 जाता है, बहुत ज़्यादा किराया जाता है। रहने जहाँ रहते हैं वहाँ का किराया, दुकान का किराया, दूसरी दुकान का किराया, लेबर की तनख्वाह, बहुत है संगत जी। और काम इतना भी चल नहीं रहा है, चल रहा है। गुरु महाराज जी ने कृपा करी है, पहले तो बिल्कुल ही बंद था, लेकिन अब धीरे धीरे गुरु महाराज जी कहते हैं तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे पति का व्यापार भी खूब अच्छे से चल रहेगा। तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी कृपा कर रहे हैं, इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी चाहे जैसी भी रहा हो, लेकिन मेरे प्रभु ने ना तो हमारा किराया रुकने दिया है, ना कुछ करने दिया है। कहाँ से ब्लेसिंग करते हैं, कैसे करते हैं, गुरु महाराज जी ही जाने। गुरु जी कहते हैं तेरी रक्षा करने के लिए, तेरे काम बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की बुद्धि को बदलना पड़ता है, और तो शुक्राना भी नहीं करती। गुरु जी इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता, हृदय से शुक्राना मेरे परम पिता। हे सच्चे पातशाह, आपके सिवा कौन है हमारा, कोई भी नहीं। मैं तो आपके भरोसे चलती हूँ, आपके दम पे चलती हूँ, मैं आपका नाम के झंडा लेके चलती हूँ। मेरा सबसे ऊंचा सतगुरु प्यारा, सबसे बड़ा सतगुरु नानक, उससे बड़ा ना कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू ही मेरा नानक है, तू ही मेरा पीर है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा बंधु, तू ही मेरा सखा, सब कुछ तू ही है मेरे मालिक। हर चीज़ को आप ही संभालिए मेरे गुरु महाराज जी। आपने मेरे सत्संग सुना के इतने कष्ट काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं, इतने कैंसरों को, इतनी मारण क्रियाओं को काटा है कि मैं अनंत जन्मों तक भी आपका शुक्राना करूं तो आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगी मेरे सतगुरु। मेरी माँ बाप भाई बहनों के सबके संकट आपने काटे हैं। मेरा भाई चलता चलता गिर गया था, चक्कर आकर गिर गए थे, उसको भी बार बार जीवन दान ब्लेस कर रहे हैं। पेट की पथरी में निकालते हैं, कैंसर से रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज जी। हे परम पिता, एक्सीडेंटों से बचा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
अभी तो ये सिलसिला एक्सीडेंट का, मरण क्रियाओं का, ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक कट रहे हैं। अब गुरु महाराज जी के मैसेज आ रहे थे आज कि तेरे सारे ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ, तेरी धीरे धीरे सारी बीमारी भी ठीक कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे 2 साल से मतलब मंथली जो प्रॉब्लम लेडीज को होती है वो बंद हो गई थी। अब पूरा सावन का महीना हो गया है, मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही क्योंकि मन ही नहीं कर पाता है। मैं सावन में जितनी मुझे तपस्या जितनी करना था वह कुछ भी नहीं, इतना नहीं कर पा रही। इसके लिए प्रयास कीजिए गुरु माँ। 2-3 दिन बचे हैं, कृपा कीजिए ना मेरे दाता। जो आप कर देना चाहते हैं, जो आप मुझसे कराना चाहते हैं, कराइए मेरे सतगुरु। आपकी महिमा अपरंपार है। शत्रु तो जैसे टान पे बैठे हैं, एक एक चीज का कहाँ से इसको हंस रही है, आज क्यों हंस रही है, आज इसको क्या मिलना है, आज इसे कौन सी ब्लेसिंग दी है, हर चीज का हिसाब किताब रखते हैं, हर बात पे नजर रखते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो तेरी छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करते हैं। कोई बात नहीं मेरे मालिक, जब आप मेरे सर पे हो, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ अपने बच्चों को लेके, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरु जी। डरे वो करे जो गुनाह करते हैं। हे मेरे मालिक, मैं तो आपकी शरण में बैठी हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कीजिए मेरे सतगुरु। आपकी रजा में राजी हूँ, जैसा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मैं तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे सतगुरु, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मेरे मालिक, कोई गलत शब्द निकल गया हो, किसी का दिल दुख गया हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। जो आंटी सत्संग को शेयर करे, गुरु महाराज जी उस पर खूब कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सागर अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच कि आप मेरा हर सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी, अ बिग थैंक्स टू यू। आपका बहुत शुक्राना। आज का दिन आपने बहुत अच्छा निकाला, बहुत अच्छा। आपने मुझे अमृत वेले उठाया, मेरे से पाठ कराया जपजी साहब का, शिव चालीसा का, और मेरे को वॉक भेजा, सब काम मैंने बहुत एक्टिवली किया। तो मुझे इतनी एक्टिवली काम करने की स्ट्रेंथ देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और हाँ जी गुरुपा, मैं दोपहर में सुखमनी साहब का पाठ लेके बैठी नहाने के बाद, पर आई एम सॉरी मेरे से ध्यान ही नहीं लगा, बिल्कुल ध्यान नहीं लगा, बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 अष्टपदियाँ कर पाती हूँ गुरु जी, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं किया जाता। और वो 2 अष्टपदी में भी मेरा ध्यान ही नहीं लगा, बीच में कॉल आ गया और फिर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगा। और मैंने आपसे सॉरी मांगी कि गुरुपा आई एम नॉट एबल टू डू इट, मेरा बिल्कुल अटेंशन नहीं लग रहा। तो वो किया कराया ना किया एक ही बराबर था। सो गुरुपा मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज गुरुपा ने शाम भी बहुत अच्छी निकाली, दिन में बहुत अच्छी बारिश आई, शाम को हमारे यहाँ पे सोसाइटी में राखी बाज़ार लगा, तो गुरुपा वहाँ लेके गए, खूब इन्जॉय किया, अच्छी अच्छी शॉपिंग की और शाम बहुत अच्छी निकली। द डे वेंट वेरी वेल गुरुपा, ऑल थैंक्स टू यू। बिना किसी आर्ग्यूमेंट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी नेगेटिविटी के आज का दिन बहुत अच्छा बीता गुरुपा। और मुझे फुल होप है कि कल का दिन आप और अच्छा निकलवाएंगे गुरु जी। हम सबकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आप सबकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं गुरुपा। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल।
बस इसी तरह चलता रहे गुरुपा, किसी को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी हेल्थ वाइज ना आए। बाकी परेशानियाँ तो चलती रहती हैं लाइफ में गुरुजी, आदत सी भी हो गई है। सो दैट्स नॉट मच बिग एन इशू। बस हेल्थ का प्रॉब्लम किसी को ना आए, बाकी तो सब लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे बच्चों के साथ रोज़ के आर्ग्यूमेंट्स, अपने थॉट्स मैच नहीं करना, रोज़ सुबह का चैलेंज, बच्चों को स्कूल भेजना, एवरीथिंग गोज़ ऑन गुरुपा। वो तो एक रूटीन हो गया अब, उससे अब वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया, उससे नहीं दिक्कत आती गुरुपा। बस सबकी हेल्थ आप सही रखो, सबकी हेल्थ संभाल के रखो, सब संगत की हेल्थ सबको ब्लेस करो जो बड़ी बड़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। आप, मुझे भी बहुत मैसेजेस आते हैं, पेट में बीमारी पनप रही है, पर मैं गुरुपा सुनती जाती हूँ सत्संग। मुझे भी बीच में कुछ टाइम हो गया, मुझे भी राइट हैंड साइड, जैसे मुझे रात को दर्द उठता था संगत जी, और फिर मैं जब तक दर्द उठता था और मैं जब तक फ्रेश होके नहीं आती थी रात को 3-4 बजे, ये शुरुआत होती थी। इट वाज अ रूटीन फॉर 3 to 4 days। जब तक मैं फ़्रेश होके आती थी, आके लेटती थी, दर्द रहता था, फिर कम होता था, और उसके बाद ये प्रॉब्लम 3-4 दिन में ख़त्म हो गई। और मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी पेट की बीमारी कुछ है, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, और ये अपने आप ख़त्म हो गई। अभी भी कभी कभी हल्का दर्द बहुत हो जाता है, तो मतलब मैं आई डोंट नो गुरुजी ने वो सही कर दिया क्या किया, पर हाँ मुझे 3-4 दिन रहा वैसा दर्द, और बड़ी अजीब सी चीज़ थी। दर्द उठता और मुझे पता होता 3-4 बजे के करीब दर्द उठता, मैं वॉशरूम जाती, फ्रेश होती, उसके बाद आती, एंड देन आई यूज़ टू सेटल एंड आई यूज़ टू स्लीप डाउन। तो ये कोई 3-4 दिन तक चला और उसके बाद अपने आप ठीक हो गया। गुरुपा ने मुझे बहुत हील किया है, बहुत हील किया है। मैं बहुत पहले भी अपने सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ। उन्होंने मेरी गर्दन पे कोई कीड़ा काटा जिसका बहुत बड़ा पैच बन गया, जो कि पूरा हाफ ऑफ द गर्दन जिसने कवर, मतलब राइट हैंड साइड का कवर कर लिया पैच ने। सब देख के इतना घबराते थे, ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आया। रात को कीड़ा काटा, पूरी रेडनेस, इचिंग और जलन, और 2-3 दिन में मुझे लगा गुरुजी ठीक कर देंगे। मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया, और उस दौरान मुझे संगत जी हमेशा मैसेजेस आ रहे थे स्किन के ऊपर की, स्किन एलर्जी या स्किन की प्रॉब्लम, और उसके लिए मुल्तानी मिट्टी और बेसन नहीं, इट वाज मुल्तानी मिट्टी, दही, जल प्रसाद, नीम का तेल और बादाम तेल और थोड़ी सी हल्दी, तो ये लगाओ, इससे सब ठीक हो जाएगा, ये लगा बेटा तेरा, ये ठीक हो जाएगा। मैं इतना, मुझे कोई दिक्कत थी नहीं तब तक, पर ऑल ऑफ ए सडन संगत जी मेरे यहाँ पे कीड़ा काटा और मुझे इतना बड़ा पैच हुआ। 2-3 दिन तक मैंने सिर्फ एक रेगुलर सी मेडिसिन ली, फिर उसके बाद मुझे स्किन स्पेशलिस्ट के सबके बोलने पे जाना ही पड़ा, और मैं गई तो वहाँ से दवाई शुरू की, उससे भी बहुत इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, पर फिर मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। ये जो गुरुजी का बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, ये मुल्तानी मिट्टी, हर सत्संग में मुझे ये सुनने को मिलता, तो मैंने भी वो ट्राई किया, एंड संगत जी विद इन अ फ्यू डेज़ मेरा गर्दन का पैच बिल्कुल गायब, और मेरी जो गर्दन पहले जैसा था सब वैसे हो गया संगत जी। सो इट वाज अ मिरेकल, इट वाज अ मैजिक। दवाइयाँ मैंने ली, दैट वाज फॉर आई थिंक 5-6 डेज़। उसके बाद मैंने ये कॉन्टीन्यूस 1 महीने तक लगाया, गले पे तो लगाया, और फिर मैंने पूरे फेस पे भी लगाना शुरू कर दिया। आई रियली सॉ द चेंज, और वो बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। तो ये अगर किसी को भी कोई स्किन की प्रॉब्लम है, प्लीज़ अप्लाई दिस, इट वर्क्स, वाकई काम करता है। और मेरी गर्दन अब बिल्कुल गले पे कोई पैच नहीं है। ऑल थैंक्स टू गुरुजी, उनके मैजिक्स तो अब रूटीन ही बनते जा रहे हैं। नाउ आई कीप ऑन टेलिंग हिम, गुरुजी आप होना बस, और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट कीप ऑन आस्किंग हिम थोड़ी थोड़ी देर में, गुरुजी आप होना, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो गुरुपा, बिग थैंक्स फॉर अ लवली डे टुडे। बहुत अच्छा दिन निकाला, बहुत फूलों की तरह रखा हर किसी को, और हर दिन आप इस तरह निकलवाएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, बाकी तो सब चलता है गुरुपा। इतने तो अब इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि इन घर के आर्ग्यूमेंट से, बच्चों के आर्ग्यूमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वी बिकम दैट स्ट्रॉन्ग गुरुपा। सो बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, आप अपना पूरा ध्यान रखें प्लीज़ गुरुपा। हमसे जो बन पड़े हम करेंगे गुरुजी, पर हम एक शुक्राना ही कर सकते हैं आपका। हमारे पास, हम और कुछ करने लायक हैं भी नहीं,
शुक्राना तो दिल से होता है गुरुपा, रोज़ दिल से ही होता है। मैं रोज़ नहीं करती रिकॉर्ड, आप कहते हैं, बट देन जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आई रियली नीड टू डू इट, आई डू इट। गुरुजी आप हो ना, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप रहना बस साथ में। और आज जो मैं पार्ट नहीं कर पाई उसके लिए आई एम सॉरी गुरुपा, बिकॉज़ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था गुरुजी। जो सुबह मैंने अमृत वेला में कर लिया वो मैंने कर लिया गुरुपा। उसके बाद तो पता नहीं, मैं बैठी तो बहुत उसी मूड से थी, पर उसी दौरान एक फ़ोन आ गया तो मेरा सारा डाइवर्शन, मतलब माइंड ही डाइवर्ट हो गया गुरुपा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज़ मुझे अमृत वेला, संगत जी मैं अमृत वेला बहुत रेगुलर नहीं कर पाती, जिस दिन उठ जाती हूँ उस दिन कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं उठ पाती उस दिन नहीं करती, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। आई डोंट नो गुरुजी, आई एम नॉट अ वेरी रूटीन बेस्ड पर्सन। आई नो आपकी बेटी आलसी है, आप माफ़ करते जाते हो गुरुजी। सो आई लव यू लॉट, वी नीड यू अ लॉट। हम सबको ब्लेस करिए, आपका मंत्र जाप गुरुजी, द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।